इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम पनिशमेंट्स देखें तो दे आर क्वाइट सिमिलर। दे मिनिमम पनिशमेंट्स दोनों कंट्रीज में 10 years है। इन आवर कंट्रीज DNA रिपोर्ट को जैसे इतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। Why do you think it's that? इट्स जस्ट लैक ऑफ लॉ। तो अगर आपके पास गवाह नहीं है तो आप खुद मसले में पड़ सकते हैं अगर आप अपना रेप रिपोर्ट कर रहे हैं। एशियन कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अनफॉर्चुनेटली ये कंट्रीज जो है इनमें विक्टिम शेमिंग बहुत की जाती है। ट्रेनिंग देने की बहुत ज़रूरत है कि व्हेन यू आर हैंडलिंग दीज केसेस यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर सेंसिटिव टुवर्ड्स द विक्टिम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपने पिछले वीडियो से कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ के जो पनिशमेंट्स हैं, जो उनके लीगल रूल्स हैं रेप केसेस को लेकर। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आयशा, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे इन्हीं सब चीज़ों को लेके। अब मोर और लेस all the countries have pretty much same punishment basically, right? कि life imprisonment है, there's like specific कुछ years हैं जो आपको जेल में काटने हैं, otherwise it's death penalty. अगर हम थोड़ा differentiate करें सब में तो क्या differences हैं? डिफरेंसेस मोस्टली अगर देखा जाए तो जो जैसे इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम पनिशमेंट्स देखें तो दे आर क्वाइट सिमिलर। दे मिनिमम पनिशमेंट्स दोनों कंट्रीज में 10 years है। अगर depending on the severity of cases there is life imprisonment, that there is death penalty as well. Okay. अगर हम countries like चाइना या रशिया की तरफ चले जाएं उनकी punishments are not as strict as the ones that are in our countries. Okay. जैसे कि चाइना में 3 to 10 years imprisonment है, depending on the severity and अगर like the severity of injury or death. Do you think it's quite less? 3 to how much did you say? 10. 3 to 10 years. Yeah. Agar there's injury involved, there is death, victim's death, yeah, gang rape of minors, then in those instances the punishment can be a bit more severe, so it can go to up to 10 years to life imprisonment in those cases only. Okay. And this I am talking about China. Similarly, if we speak about Russia again 3 to 6 years, life imprisonment for rape of minors. If there is gang rape or rape resulting in severe injury or death, then the punishment is from 8 to 15 years. So you're trying to say there's no death penalty in Russia? No. Wow. Okay. अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जाएं, and this is what you're talking about, legal, right? Yeah. कि death penalty है ही नहीं. They don't have death penalty. Okay. तो वेस्टर्न तो फिर उस मुकाबले में बहुत बेटर है, एटलीस्ट आई थिंक। वेस्टर्न कंट्रीज में भी डेथ पेनल्टी नहीं है। They don't have death penalties for anything, not even murder. They have life imprisonment. Okay. अगर हम we are talking about countries like UK, USA, they have a very different standard of looking at these cases. The number of years you will be serving in prison depends on the circumstances of individual case. हर केस में क्या वायलेंस है नहीं है, विक्टिम की एज क्या थी, उन सब सर्कमस्टांसेस को देख के पनिशमेंट दी जाती है. It can go from, typically in UK if we talk about, it can go from 4 to 10 years. It can even go to life imprisonment. Okay. In fact, you can say it's 4 to life imprisonment because main वही एक broad spectrum में आ जाता है. USA, however, has a bit more like long-term punishments. They categorize rape in 2 different categories: first degree rape and second degree rape. First degree rape is the ones that involve violence against the victim, use of weapons, या फिर अगर victim is a minor. In those cases, typical punishment is 10 to 25 years, and some states do allow life imprisonment as well. Okay. So that's USA, the first degree rape. If it's second degree rape, which means it doesn't involve aggravated circumstances like severe injury, death, or those kind of cases, then the typical range
of the punishment, it's between 5 to 20 years of imprisonment. Okay. Some states impose life imprisonment without parole for cases such as repeat offenders or those involving serious harm to the victims. So these typically, अगर आप Western countries में देखें, it's quite similar. So basically, death penalty जो है वो either it's in like Middle East or Asia. Asian Okay. side of the world. Okay. Yeah. Okay. So, or what about the evidence? Like evidence, किस type का evidence जो है वो in cases में acceptable होता है? I think more or less same ही होगा. It's more or less same. Yeah. हाँ जी. It is more or less same. अगर लेकिन वो ये है कि अगर हम Western countries के तरफ जाएं तो they depend on victim testimony, DNA reports. They have different routes to follow. Yeah. वो ज़्यादातर इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं. In our countries, DNA report को जैसे इतना ज़्यादा वो importance नहीं दी जाती है. Why do you think it's that? It's just lack of law, to be fair. I don't have anything else to say. But like these days, don't you think कि सबको पता है कि DNA report would be like the best thing to prove whether it's I'm a rape? sure पता Obviously है. इसका time frame होता है. Yeah. But still, it's a very good evidence to use best against way the accused. to identify the perpetrator. Yes. And I'm pretty sure कि सबको पता भी है, but then they have their different reasons. जैसे Middle East में they have death penalty. They have very severe like punishments for these kind of crimes. But then again, Middle East, Saudis, they follow Sharia law. Okay. I'm sure a lot of people watching the video would know what Sharia law is. लेकिन अगर आपको नहीं पता है, they follow Islamic law, which is also known as Sharia law. इसके हिसाब से punishment is very strict. डेथ पेनल्टी है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा नहीं, इनफैक्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज इट आइदर रिलाइज ऑन द कन्फेशन फ्रॉम द परपेट्रेटर, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है ऑब्वियसली. जिसने ये किया है वो खुद कन्फेस करे कि मैंने किया है, या फिर इन सम केसेस दे रिक्वायर अ टेस्टिमनी फ्रॉम 4 मेल विटनेसेस. तो अब ये 4 मेल एडल्ट विटनेसेस कहाँ से आएंगे, कौन थे जो विटनेस कर रहे थे क्राइम, दे डिडंट प्रिवेंट इट, नाउ दे आर हियर to give their testimony. You understand how difficult that can be. And you're saying कि शरिया लॉ में जो विक्टिम है उसकी गवाही या उसका कुछ भी मैटर नहीं करता if they are saying that they have been raped. Again, as I said, आपको या तो 4 आदमियों की गवाही चाहिए या तो फिर परपेट्रेटर खुद कबूल कर ले अपना जुर्म. In some cases, Middle East में ऐसा हुआ है कि जहाँ women they reported rape and then they were accused of engaging in illicit sex, so zina जिसको कहते हैं. Okay. So उनको basically zina के लिए accuse किया गया if they were unable to meet the strict evidence requirements in the country. तो अगर आपके पास गवाह नहीं है तो आप खुद मसले में पड़ सकते हैं अगर आप अपना रेप रिपोर्ट कर रहे हैं. This I believe is also one of the reasons कि इस साइड ऑफ द वर्ल्ड में इतने केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं. बिकॉज एक तो विक्टिम रिपोर्ट करने के लिए बहुत वो एक डर होता है, हेसिटेशन होती है, और दूसरी चीज आई ऑल्सो बिलीव दैट they don't really show the numbers to the world. There are several countries within Middle East that exactly the same as India, हमने last video में बोला था, they don't consider marital rape as rape. So a lot of the cases जो उस table के अंदर आ जाते हैं, then they don't get reported anyways because they're not considered rape within the country as per their law. Okay, let's talk about the support. What support do victims and families get? देखिए, Western countries में they have a lot of support. They have different organizations who work with the victims, even like within the law forces and all those. They have support for victims for all kind of crimes. जब भी कोई crime होता है, they send this special separate team that works around that part of. Just to talk to them, their families, make sure they're okay, provide all sorts of help. हमारे countries में नहीं है ये चीज़.
हमारे कंट्रीज में और बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि विक्टिम शेमिंग बहुत होती है। एशियन कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अनफॉर्चुनेटली ये कंट्रीज जो है इनमें विक्टिम शेमिंग बहुत की जाती है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके ऊपर सबसे पहले काम करने की ज़रूरत है। वो लोग जो लॉ के प्रोटेक्टर्स हैं उनको अलग से ट्रेनिंग देने की बहुत ज़रूरत है, हाउ टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द विक्टिम। जब आप क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आई फील कि समटाइम्स बहुत ही इनसेंसिटिव तरीके से की जाती है। बहुत इनसेंसिटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विक्टिम से। तो उसके लिए एक ट्रेनिंग देने की बहुत ज़रूरत है कि व्हेन यू आर हैंडलिंग दीज केसेस यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर सेंसिटिव टुवर्ड्स द विक्टिम। ये एक मुझे लगता है कि चीज़ है जो हमारे मुल्क में काम करनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? Absolutely 100%. I don't think अभी तक हमारे मुल्क में इस चीज को इतना इम्पोर्टेंट भी समझा जाता है कि इसके ऊपर कोई बात की जाए। आई थिंक ये टाबू है, स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान, टॉकिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ केसेस। क्योंकि हमारे कल्चर में बहुत ये भी है कि अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ पीपल हैज अ थिंकिंग कि अगर रेप हुआ है तो यू नो समवेयर डाउन द लाइन इट्स उनकी इज्जत चली गई है। नो, इट्स अ वुमेन्स फॉल्ट, व्हाई वाज शी आउट देयर। ये हम पाकिस्तान में सिर्फ नहीं कहेंगे, ये फिर एक एशियन साइड में ये थॉट प्रोसेस अगेन विक्टिम शेमिंग वाली बात ही आ जाती है कि ये इंडिया में भी अब जैसे एक केस हुआ, शी वाज एट वर्क, यू नो, वो कहीं बाहर घूमने नहीं निकली हुई थी, वो कहीं किसी के साथ, दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट नहीं कर रही थी। शी वाज लिटरली एट हर वर्क प्लेस ट्राइंग टू हेल्प अदर पीपल हु आर इन नीड। लेकिन इस तरह की केसेस, इस तरह की बातें फिर भी लोग करते हैं। The 12 years ago, the case that India saw, the whole world saw that case. क्या हुआ था उसमें? सबसे पहली चीज़ जो मोस्ट आदमियों की तरफ से आ रही थी, इनफैक्ट औरतें भी इस तरह की कमेंट्स करती हैं कि यू शुड स्टे होम, आप बाहर कर क्या रहे थे? इनफैक्ट the law enforcement people involved, the personnel was involved there, they were talking about all these things on camera. The lawyer gave these kind of statements कि आप वो बाहर कर क्या रही थी, you know, she shouldn't have been out this late. And it wasn't even late, as much as I remember. I don't think it was too late in the night जब ये निर्भया केस हुआ था। बट ये चीज़ें हमारे कंट्रीज में बहुत होती हैं, नहीं होनी चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली होती हैं। ओके, सो ये तो एक क्या लॉ है करंटली, उसके बारे में हमने बात की। अच्छा, अब बात करते हैं कि हम जो भी लूप होल्स हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो इन लॉज में लूप होल्स ढूंढ के they get away with all these things, right? With all the crimes and the punishments that they're supposed to get. So how can we actually strengthen these laws to make sure कि कोई भी criminal इससे बच ना पाए? Like what are those things? So सबसे पहले I think एक तो हमें बहुत strongly classify करना चाहिए हर चीज़ को, जैसे like you said marital rape हो गया, minors जो माइनर केसेस होते हैं उसमें क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कंसिडर होती हैं वो ब्रूटल सेक्शन में आने के लिए कि हाँ यू नो दिस वाज अ ब्रूटल केस, सो दिस नीड्स टू बी डेल्ट इन अ डिफरेंट वे देन द अदर लाइक सेकंड डिग्री मर्डर रेप, सॉरी। तो उसके लिए आई थिंक डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, एक ग्राउंड सेट करने बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ को क्लियरली डिफाइन करना ज़रूरी है। ब्रिंगिंग टू माई सेकेंड पॉइंट जो है कि आपको एक मिनिमम सेंटेंस सेट करना पड़ेगा कि वंस यूर अक्यूज्ड इतना पनिशमेंट तो आपको है ही, क्योंकि आई डोंट थिंक लाइक यू मेंशन इन चाइना एंड रशिया देयर इज नॉट द मिनिमम सेंटेंस इज नॉट इनफ। 3 साल इट्स जस्ट नॉट इनफ। यस, सो आई थिंक उसके लिए हमें एक सेट रखना चाहिए कि यू नो लेट्स से 20-25 years। सो आउटकम क्या होगा? एटलीस्ट अ क्रिमिनल बिफोर डूइंग सच हीनियस क्राइम दे वुड हैव एटलीस्ट अ थॉट कि यू नो मैं पकड़ा जाऊंगा तो दिस इज माय सजा, ये नहीं कि मैं 2-4 साल बैठ के जेल में आराम से आ जाऊंगा बाहर। आई एग्री। इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो मिनिमम सेंटेंस 10 years है, लेकिन अगेन
कितने लोगों को कन्विक्ट किया जाता है, नहीं मिलती है, कन्विक्शंस नहीं होती हैं। तो absolutely. जब तक हमारे पास लॉज हैं, लाइक पाकिस्तान में अभी पाकिस्तान हैज एस्टैब्लिश्ड अ स्पेशल कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल्स फॉर हैंडलिंग सच केसेस, एंड दे एम टू गो फॉर फास्टर ट्रायल्स। लेकिन बात वही आ जाती है कि आपको अपना नंबर ऑफ कन्विक्शंस बढ़ाना पड़ेगा। Yeah. द लॉ वुड हैव टू डू व्हाट दे आर देयर फॉर। अगर वो लोग अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो फिर ये एक थॉट प्रोसेस आ जाता है इस तरह के लोगों में कि भाई उसको ये सजा नहीं हुई तो हमें मुझे भी नहीं होगी, या वो अगर बच गया तो ये आइडियोलॉजी खत्म करने की जरूरत है, लोगों के दिल में डर डालने की जरूरत है। हम एक चीज के थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, बट इट मेक सेंस कि अगर हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात करें इस चीज पे आके कि वहाँ चोरी चकारी नहीं है, वहाँ मर्डर्स इतने कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी सजा अगेन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आपको मौत के बदले मौत, डेथ पेनल्टीज, ठीक है, या अगर आपने चोरी की तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे। तो नाउ अगर आप अपना कोई कन्वर्टेबल आपकी गाड़ी भी खड़ी हुई है विच इज एक्सपेंसिव कार ऑन द रोड, आप ऑन छोड़ के गाड़ी की चाबी सड़क पे छोड़ के चले जाएं, आपकी गाड़ी कोई चुरा के नहीं लेके जाएगा। आप भरे हुए मॉल में अपना फोन या अपना बैग छोड़ के कहीं चले जाएं, आपका चीज कोई उठाएगा नहीं। Why? Because डर है कि एक चीज के लिए I cannot lose my hands. The punishment is way too much. तो वो डर नहीं है हमारे मुल्क में। I remember कुछ सालों पहले तक इस चीज को बहुत बुरा कहते थे, लेकिन I just 100% agree. I think आजकल के टाइम में this is needed. Yeah. Because crime उस लेवल तक चला गया that criminals have no डर। प्रॉब्लम पता है कि हम बच जाएंगे, तो जब तक हम इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं रखेंगे, these people won't back off. Exactly, they won't back off. See, again, हमने लास्ट टाइम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात की थी, लेकिन मेन फोकस मेरा तब भी उस वीडियो में यही था कि हमारे मुल्कों में लॉज हैं बट पेपर की हद तक फॉलो नहीं किए जा रहे। ये एक इंसिडेंट अभी जिसका वैसे तो कोई ताल्लुक नहीं है जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, बट इट जस्ट हैपेंड अ फ्यू डेज अगो। कराची के अंदर a woman who belongs to a very influential family, she killed a few people because of her rash driving and she was under the influence. हमारे मुल्क में शराब पीना बेचना is also a huge crime, but वो I'm pretty sure इस पूरे केस में से बहुत आसानी से निकल चुकी हैं एक तरीके से, और इसको फॉलो अप नहीं किया जाएगा। अगेन व्हाई? बिकॉज पैसा है। तो हमारे मुल्कों में ये जो देयर इज नो लॉ और देयर इज अ डिफरेंट लॉ फॉर द रिच एंड डिफरेंट लॉ फॉर द पुअर, ये चीज़ ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ ख़त्म सिर्फ हमारे ये जो लॉ मेकर्स हैं वो ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। तो द ओनली पॉइंट, हम जैसे लोग बहुत वीडियोस बना सकते हैं बैठ के, वी कैन टॉक अबाउट इट, लेकिन जब तक गवर्नमेंट एंड दोज इन्वॉल्व इन द पावर, दोज हु कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस, तब तक तो वो नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। और ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है हमारे मुल्कों में। आई थिंक इट वुड टेक ईयर्स इफ नॉट मोर टू ब्रिंग दीज चेंजेस, क्योंकि ये एक इंसान के बस की बात भी नहीं है। It's the whole department the whole system needs to change, which as unfortunate as it may be, impossible लगता है, but let's see. It's very difficult. Let's see. It is very difficult. Okay, let's come to our next point. I think एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है victim protection, witness protection. बहुत केसेस में ऐसा होता है कि हमने देखा है कि जो केसेस रिपोर्ट होते हैं, somewhere down the line केस के बीच में either the victim backs out या कोई witness back out कर जाता है, right? तो obviously यहाँ पर हमें पता है कि इसमें जो accused होता है वहाँ से प्रेशर होता है, कोई धमकियाँ इन्वॉल्व होती हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़। कई बार ऐसा होता है कि अगर धमकी नहीं चल रही तो जो अक्यूज्ड हैं, जो अगर वो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, तो वो पैसा ऑफर कर देते हैं, हट जाओ, सेटलमेंट कर लेते हैं। सो आई थिंक उसके बेसिस पे व्हाट डू यू थिंक, लाइक कुछ ऐसे स्ट्रिक्टर रूल्स होने चाहिए, कुछ ऐसा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कि एटलीस्ट जो विक्टिम है वो अपने आप को सिक्योर समझे।
क्योंकि बहुत केसेस में होता है कि अटैक्स वगैरह होते हैं या फिर फैमिलीज डर जाती हैं, बैकआउट कर जाती हैं, इवन दो दे डोंट वांट टू, दे डोंट हैव अ चॉइस आफ्टर दैट। होती हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा है, ऐसा होता है आई एम श्योर। लेकिन अगर कोई बैकआउट कर रहा है, मतलब ये फिर वही चीज है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। कैसे आप करेंगे? ये वही बात है कि आपका पूरा सिस्टम खराब है और पूरे सिस्टम को ठीक होने की जरूरत है। हम ये कहें कि अगर कोई सेटलमेंट करना चाहता है पैसे देकर, तो आई मीन अगर दूसरी विक्टिम या विक्टिम की फैमिली वो एक्सेप्ट कर रही है विलिंगली, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, इट्स देयर चॉइस। ये बहुत सारे कंट्रीज में, इवन मिडल ईस्ट में आपको ये चीज़ है। अगर आप शरिया के हिसाब से भी देखें, अगर आपने किसी का कत्ल कर दिया फॉर इंस्टेंस, और अगर आप विक्टिम की फैमिली को सेटलमेंट के तौर पे पैसे ऑफर कर रहे हैं एंड दे आर विलिंग टू पार्डन यू फॉर दैट, देन यू कैन डू दैट। अगर सामने वाली पार्टी विलिंगली एक्सेप्ट कर रही है, देन इट्स फाइन। लेकिन दबाव डाल के या ये कहना कि ये आपके पास ऑप्शन है, आप करें, वरना हम आपकी फैमिली के किसी और मेंबर को कुछ कर देंगे, उठवा लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये चीज गलत हो जाती है। लेकिन देन अगेन द लॉ एंड द सिस्टम नीड्स टू वर्क ऑन दिस एक्चुअली ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट कि हमें एक स्पेशल, आई थिंक ऐसी हर कंट्री को एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी यूनिट या कुछ ऐसा बॉडी बनाना चाहिए जो स्पेसिफिकली इन केसेस को, रेप केसेस को हैंडल करे, जिसमें ऑब्वियसली वेल ट्रेन्ड, आई थिंक पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व होने चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन करें। सो लाइक यू सेड कि बहुत सारे इनसेंसिटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विक्टिम को जब वो रिपोर्ट करने आते हैं, तो वेल ट्रेन्ड पीपल होना चाहिए, स्टाफ जो एक्चुअली आपसे, उनको पता है कि आपसे किस तरीके से बात करनी है। दे डोंट आस्क यू लाइक very weird questions. I can't even talk about all those. मुझे ऐसा लगता है हमारे कंट्रीज में स्पेसिफिकली special courts, I'm sure अभी India is also working on that. They have special courts. They are working on fast track these kind of cases. हमारे पाकिस्तान में भी ये हो रहा है। As you said, I do feel they should work on making a separate wing, maybe a more women centric विंग, जो कि इस तरह, क्योंकि ये देखिए रेप इज, इट डज नॉट ओनली हैपन विद विमेन, इट हैपन विद मेन एज वेल। हाँ बहुत शायद कम नंबर में होगा इन कंपैरिजन टू विमेन, बट मेन आर विक्टिम्स ऑफ दिस एज वेल, चिल्ड्रन आर विक्टिम ऑफ दिस एज वेल। तो मुझे लगता है कि शायद अगर कोई ऐसा विंग जो बहुत ज़्यादा विमेन सेंट्रिक हो, पावर में औरतें ज़्यादा हों, एंड ये एक थोड़ा बाकी सिस्टम से हटके एक उनको उनकी पावर दी जाए टू इन्वेस्टिगेट, दैट माइट हेल्प the victims to come forward and talk about their experience. But I disagree. I think अगर ऐसे किसी विंग में अगर कोई मर्द भी हैं तो हो, नहीं मेरा मतलब ये नहीं है कि everybody in that wing should be women only, but I think the ones leading the wing should be women. Because I do feel some way or another they have more empathy. I think, and I think well, I won't say 100% I won't agree with it, because sometimes maybe not. एक औरत भी बहुत ज्यादा हो सकती है, I don't care, ये है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद जैसे ज्यादातर जो विक्टिम्स होते हैं, आई थिंक a woman might be more comfortable talking about her experience with another woman who's the one in charge for the investigation. That's I think whoever involved in such bodies in future, I think they should just have more empathy towards the victim and the family. उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, हमारे मुल्कों में इस चीज की ट्रेनिंग देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। That's just my take on this. Okay, let me come to my next point. I think इसके बाद हम इसको कंक्लूड करते हैं कि बेल का क्या सिस्टम है। हम देखते हैं बहुत सारे क्रिमिनल्स जो होते हैं ऐसे रेप केसेस में जो अंदर जाते हैं, वो बेल लेके, पैरोल लेके बाहर फिर रहे होते हैं। हाँ। एंड सो मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड कि वो वापस से ऑफेंसेस करते हैं व्हाइल दे आर ऑन द पैरोल। तो आई थिंक इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाने चाहिए कि आप किस रीज़न की वजह से पैरोल पर जा रहे हैं, आपकी बेल क्यों एक्सेप्ट हो रही है। एंड स्पेसिफिकली अगर आप किसी ब्रूटल केस में इन्वॉल्व हैं, आप अक्यूज्ड हैं, आप जेल में सज़ा काट रहे हैं, तो आपकी बेल होनी ही नहीं चाहिए। आई एग्री। बट ऐसा होता है राइट कि वो बाहर फिर रहे होते हैं एंड देन ऑब्वियसली कंटिन्यूसली दोबारा से ऑफेंस कर रहे होते हैं। कितनी बार ऐसा भी होता है दे डू एन ऑफेंस, जिस केस के लिए वो पकड़े जाते हैं वो बाहर निकल के उसी विक्टिम को दोबारा अटैक करते हैं। एग्जैक्टली।
तो अगर और इवन कोई एक तो होना नहीं चाहिए ऐसा ऑब्वियसली, लेकिन अगर कोई किसी सिचुएशन में, लिजिट सिचुएशन में वो पैरोल पर है भी बाहर, तो आई थिंक कि बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए। आप नजर रखें उसके ऊपर कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। आप ऐसे ही नहीं छोड़ दें उनको कि आप बस अब आप आज़ाद हैं, आप कुछ भी करें जाके। बिल्कुल, ये वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, अगर आप रोल पे हैं तो भी आपको जो है वो यू नो दे पुट अ हैंडकफ काइंड ऑफ थिंग ऑन योर हैंड ऑन योर फीट, दे ट्रैक यू वेयर यू आर। तो ये चीज होनी चाहिए हमारे कंट्रीज में। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि इफ एन एक्यूज्ड हैज बीन कन्विक्टेड, I don't believe in this 3 years, 10 years, 6 years. मुझे लगता है कि अगर brutal था या नहीं था, it causes the same kind of disturbance to the victim. I don't think it makes any difference कि क्या situation थी, circumstance क्या था. Absolutely. It causes the same distress to the victim. I don't think there's any difference. Okay, so I think we should close it for the day. Yeah. Just in last मैं यही बोलूँगी कि root cause को पकड़ना चाहिए सबको, कि एजुकेशन देनी चाहिए एक तो फ्रॉम अ वेरी यंग एज टू आवर बॉयज स्पेसिफिकली, कि आप अपने बच्चों को सिखाएं कि रिस्पेक्ट क्या होती है, कंसेंट क्या होता है, फ्रॉम अ वेरी यंग एज। तभी आप आगे जाकर वो चीज़ को कंटिन्यू करेंगे अपनी लाइफ में। Feed empathy in your children. Exactly. So these things are very important to be told to children, to be taught to them from a very young age. ये ऐसा नहीं है कि एकदम से एक दिन किसी बंदे की आंखें खुल जाएंगी, ज़मीर जाग जाएगा और वो बिल्कुल सुधर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। So I think basically यही है कि आप थोड़ा एजुकेशन सिस्टम, थोड़ा अवेयरनेस लाएं, कैंपेन्स चलाएं, राइट, तो लोगों को अवेयर करें। आई थिंक एक इन कंट्रीज में इस चीज के ऊपर काम होना चाहिए, टू रन कैंपेन स्पेसिफिकली टू spread awareness about the punishments for these crimes. लोगों को पता ही नहीं है कि punishment क्या है। अगर हम इसके ऊपर ज्यादा emphasis करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो हो सकता है if not many, शायद 20 में से 10 भी अगर रुक जाएं ये सोच कर के punishment क्या होगी, तो it's beneficial. Exactly. Okay guys, we'll sign off here for today. आप प्लीज़ अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है, कोई और सजेशन जो आपको लगता है कि आगे इन चीज़ों को बेटर करने के लिए कंट्रीज़ को, लीगल सिस्टम्स को यूज़ करने चाहिए, तो प्लीज़ डू शेयर इन कमेंट्स। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।